Hello students, in this video we will discuss about the two most important cell organelle present in cell, that is nucleus and vacuoles. I hope that you have already viewed the previous lectures of cell for easy understanding. So what do you mean by nucleus? What is nucleus inside the cell? Nucleus is present in the central region of cell, as we have discussed earlier in the part 1 of the cell, that nucleus is present in the central region of the cell, and nucleus is commonly known as CPU of the cell, as the function of CPU in the computer is to control all the activities of computer. Therefore the nucleus of the cell control all the activities of the cell. सेल की सारी एक्टिविटी का कंट्रोलर कौन है? न्यूक्लियस ही है. व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल एवरी साइकोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. अब ये न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन was a renowned biologist who discovered the nucleus inside the cell. Let us know where nucleus is present in the cell. As we all know, every cell organelle is present in the cytoplasm. Therefore nucleus is also present in the cytoplasm of the cell. Because cell contains liquid, that viscous liquid is called cytoplasm, and in the cytoplasm nucleus is there. Let us know more about nucleus. The outermost covering of nucleus, that is this covering, this outermost covering of the nucleus is called nuclear membrane. And nuclear membrane is a bilayered structure. What do you mean by bilayer? Bi means two. That means the cover of nucleus contains two layers. And this bilayered covering is called nuclear membrane. And the distance between the two bilayer covering contains very little space. That little space present in the bilayered covering is called perinuclear space. What is perinuclear space? Perinuclear space is the space present between the two layers of nucleus. So what is the first concept of nucleus? First concept is about the cover of nucleus. न्यूक्लियस के बाहर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? उस बाउंड्री को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो लेयर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ना. अब ये जो दो लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इस दो लेयर के बीच का जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस. उस स्पेस को क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. एंड दिस बायलेयर्ड कवरिंग ऑल्सो कंटेन्स वेरी माइन्यूट पोर्स, and that minute pores are called nucleopore. Nucleo means nucleus and pores means small hole. That means hole present inside the nucleus or on the surface of nuclear membrane is called nucleopores. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होता है. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. Fluid present inside the nucleus is nucleoplasm, because nucleo means nucleus and plasm means fluid. That is, fluid present inside the nucleus is called nucleoplasm. Afterwards, nucleus contains nucleolus and chromatin. These are two new words for you. Actually, nucleus के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि फ्लूइड है न्यूक्लियस का. और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे पहला तो है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल बॉडी. न्यूक्लियोलस क्या है कि एक स्फेरिकल छोटी छोटी शेप की क्या है? बॉडीज है. और उस छोटी शेप की बॉडीज को न्यूक्लियोलस कहते हैं. और एक दूसरी चीज जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दैट इज क्रोमेटिन. अब ये क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज द जेनेटिक मटेरियल. क्रोमेटिन एक जेनेटिक मटेरियल है. हमने बहुत सुना है डीएनए के बारे में कि सेल में डीएनए होता है, एंड दैट डीएनए कैरीज आर टोटल इंफॉर्मेशन, और उसी डीएनए में हमारी टोटल इंफॉर्मेशन होती है ना. तो आखिर वो डीएनए सेल में है कहां? तो सेल में वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है. न्यूक्लियस के अंदर भी कहां है? न्यूक्लियोप्लाज्म में. और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी कहां है? क्रोमेटिन में. तो व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन इज द साइट ऑफ डीएनए. क्रोमेटिन में ही डीएनए है ना. तो nucleoplasm very important thing. Why? Because nucleoplasm contains two things. First is the spherical shaped nucleolus and second is chromatin.
क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, क्रोमेटिन में क्या होता है डीएनए, और डीएनए ही हमारा क्या है हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हमारे पिताजी से हमारी माता से जो कैरेक्टर हमारे में आया है, सच कैरेक्टर्स आर कैरिड बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म है डी फॉर डीऑक्सीराइबोस, एन फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने पहले डिस्कस किया है, क्या? पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियोपोर्स। जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसको न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। अब न्यूक्लियोपोर्स का फंक्शन क्या है सेल में? द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोपोर इज टू ट्रांसफर सर्टेन एसेंशियल प्रोटीन्स एंड आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड बाउंड्री, है ना। न्यूक्लियस के अंदर से कुछ प्रोटीन्स को बाहर भेजना, बाहर से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर लाना, ये काम है किसका? न्यूक्लियोपोर का, है ना। अब ये जो डीएनए की बात हमने की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की बात की, मैंने तुमको बताया कि डीएनए क्या है? डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी। अब इस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल। हेलिक्स मींस ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, जैसे कि एक रोप ट्विस्टेड होती है, वैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है, जैसा कि तुमको बोर्ड पे दिख रहा है ना। ये जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ये एक बहुत रिनॉन्ड बायोलॉजिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इस डबल हेलिकल मॉडल को एक्सप्लेन किया था, है ना। तो अभी इस लेवल पे तुमको बस इतना ही जानना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल है, उसमें दो हेलिक्स है, दो आर्म है, और ये दोनों आर्म ही एक दूसरे से क्या है? ट्विस्टेड है। अब एक तुम्हें यहां इमोजी नजर आ रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर फेलो इज थिंकिंग दैट इज एनी सेल विच लैक्स न्यूक्लियस, क्या इस अर्थ पे कोई ऐसी सेल है जिसमें इतना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस ना हो? तो द आंसर इज यस। इवन इन आवर बॉडी ऑल्सो कुछ ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, और वो सेल कौन सी है? आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल लैक्स न्यूक्लियस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, दैट आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, है ना, कि विच सेल लैक्स न्यूक्लियस और हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। It may come in the MCQ type, and also which cell lacks nucleus, कौन सी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो in human beings RBC is the cell, red blood cells lacks nucleus. What is the another name of red blood cell? The another name of red blood cell is your erythrocytes. Erythrocytes and red blood cell both are the same thing. Afterwards in plants also sieve tubes lacks nucleus. Okay. So this is all about nucleus, that is CPU of the cell. Nucleus contains all the activities, all the psychological, chemical as well as physical function of the cell. Let us consider the other molecule of cell, that is vacuoles. Who discovered vacuoles? Vacuole was discovered by A.V. Leeuwenhoek. We already discussed about this biologist. Who was A.V. Leeuwenhoek? A.V. Leeuwenhoek was the personality who discovered first living cell, as we discussed earlier in the part 2 of the cell, that is A.V. Leeuwenhoek was the first person who discovered living cell in the protozoa, that is Spirogyra. And what is vacuole? The word vacuole suggests that vacuole means sac. What is sac? Sac is a hollow space. सेल के अंदर कुछ खाली जगह होती है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो हॉलो होते हैं, उस हॉलो सेल ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। तो वैक्यूल्स आर द हॉलो सेल ऑर्गेनेल्स। These are the type of cell organelle usually helps in storage of waste product of cell. सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, either they are in the form of certain chemicals, either they are toxic waste materials, all those waste product of the cells are stored in a sac-like organelle. That sac-like organelle is vacuole. एक सेल में जो एनिमल की सेल होती है, एनिमल सेल में बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनकी नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। मतलब अगर एक एनिमल सेल है तो उसमें वैक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बट दे आर स्मॉलर इन साइज. बट इन द केस ऑफ प्लांट द नंबर ऑफ वैक्यूल इज आइदर 1 or 2 or 3, but the size of vacuole is biggest. That means
in plant cell vacuoles are the biggest cell organelle. Why? Because in plant cell 90% of the cell contains vacuole. पूरे सेल की वॉल्यूम का 90% क्या होता है? वैक्यूल ही होता है ना। और वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो कि क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्यूल के अंदर क्या है? खाली स्पेस है। उस खाली स्पेस को भरने का काम वेस्ट प्रोडक्ट्स करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट करते हैं, है ना। तो वैक्यूल में सिर्फ एक छोटा सेल ऑर्गेनेल है। जानने की बात इतनी है। हु डिस्कवर्ड वैक्यूल? वैक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी लेवेनहुक। इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल व्हिच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स and toxic waste. In animal cell, the number of vacuoles are more, but they are smaller in size. In plant cell, 90% of the total volume of cell is occupied by vacuoles. Okay. Afterwards, in this video, we will discuss one more thing, that is, suppose that this is a vacuole. ये एक vacuole एक खाली जगह वाला cell organelle है। इसकी जो outermost layer होगी ना, that outermost layer of vacuole is called tonoplast. This is also very important MCQ question, that what is the outermost layer of vacuole? Vacuole की outermost layer को क्या कहते हैं? So the outermost layer of vacuole is called tonoplast. I hope that you have already understood nucleus, the concepts of nucleus as well as the concept of vacuoles. In the next video, we will discuss about Golgi apparatus and many more cell organelles. In the last of this video, I will ask you one question that you have to answer. Who discovered Golgi apparatus? Golgi body or Golgi apparatus, both are the same thing. You have to search it for and give answers in the comment box. Thank you. That's all for this video.